Poonam. Welcome to the Insightaholics. What are the reasons for period get delayed? Stress has important role to play, be it physical stress or emotional stress. One in every 3 women are affected with PCOD or maybe PCOS. हमारे टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा कॉलम होता था पहले PCOD का, and now it is a huge topic. हम अपनी फर्टिलिटी विंडो को ट्रैक कैसे करें? 28 day cycle जिसका हो रहा है, this is around ovulation is the period which is known as fertility window. What is the right age to get pregnant? 20s and early 30s. One thing couples should understand that there is a biological clock in women which is ticking day by day. जैसे हम 35 and beyond पहुँचते हैं, कंसीव हुआ तो मिसकैरेज होने के चांसेस भी हो जाते हैं. आपके अकॉर्डिंग एक कपल को कितने टाइम के बाद दे शुड सी कि हाँ भाई अब मुझे अब डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए? They should try. What are the common misconceptions about IVF? एक बार IVF कराया तो 100% सक्सेस होना चाहिए. जो आजकल है डॉक्टर themselves push for the C-section because of profitability. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इनसाइटaholic. आज के एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके अराउंड बहुत सारे टैबूज, मिथ्स और हाफ नॉलेज है, which is women's health. Be it periods, fertility, pregnancy, postpartum और menopause, इन सब स्टेजेस के अपने अलग चैलेंजेस और स्टोरीज होते हैं. और इन सबको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज डॉक्टर पूनम गुप्ता, who is a expert in gynecologist, जो अपने वास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे सारे डाउट सिंप्लीफाई करेंगी. सो सिट बैक, लिसन इन और शुरू करते हैं ये ऑनेस्ट कन्वर्सेशन बाय वेलकमिंग आवर गेस्ट. Poonam, welcome to the Insightaholics. Thank you so much for accepting our invite and it's a pleasure to have you on our channel. So first and foremost, I want to ask about your journey and why you choose this field from like basically the MBBS student and becoming a gynecologist. Okay. So first I would like to thank Insightaholic for giving me this opportunity to speak and present my view in a public forum. So regarding my journey, it was like getting into MBBS was a dream come true for me. And after that, during the course of MBBS, I was quite fascinated about doing surgeries. I wanted to take some surgical field. Then it was my parents' wish that I should become a lady doctor or obstetrician and gynecologist. So both the thing motivated me to choose obs and gynae. So like this field, gynecologist, is a very demanding job. Like it's not a regular 9 to 5 job. You are always on your toes, right? So like in that situation, how do you manage that work-life balance? Definitely it is true. Any time of the day, any day of the week, we may be called in and we have to attend at that particular time. It is my family support, my husband's support that I could manage to balance both my personal and professional life. So doctor, let's start with menstrual health and cycle. So menstrual health के the 4 phases जो होते हैं, right? So if you could walk us through these 4 phases and what happens during these phases, like within our body, hormones और आपके जो physically जो changes होते हैं, if you could guide us step by step. Adolescent के physical growth and development में starting of menstruation is an important milestone. When it starts, this process is known as menarche, and menstruation is divided into 4 phases. Number 1 is the stage of menstruation. And what happens, there is simultaneous changes in the uterus as well as in the ovaries. So during the menstrual phase, what happens is endometrial lining जो uterus की inner lining होती है वो shed off होती है और bleeding होता है ना. फिर उसके बाद ओवरी में कुछ न्यू एग रिक्रूट होने शुरू होते हैं, छोटे छोटे एक मल्टीपल एग्स रिक्रूट होते हैं. दैट फेज इन द यूट्रस सम चेंजेस विल अकर, दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज. What happens, these small follicles will start producing estrogen hormone, और वो estrogen hormone के influence में यूट्रस की लाइनिंग थिक होना शुरू होती है जो कि शेड ऑफ हो गई थी मेंस्ट्रुएशन के समय. उसके बाद ओवरी में क्या होता है, ये मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल डोमिनेट होगा और एक फॉलिकल फिर रप्चर होगा. दैट प्रोसेस इज नोन एज फेज ऑफ ओव्यूलेशन, दैट इज द 3rd स्टेज. एंड
Once the ovulation had occurred, the remaining part of the follicle will become corpus luteum, which now starts secreting estrogen plus one more hormone, that is progesterone. So under the influence of progesterone, the lining of the uterus will start becoming even more thicker and spongy, and this all preparation will go to embed the pregnancy if it at all happens. If it does not, then what happens? The lining will again shed off, and this fourth phase is known as secretory phase. And if pregnancy does not happen, then what happens? This endometrium will shed off, and the process of menstruation will start again. So these are the four phases: menstruation, then proliferative, then ovulation, then secretory. हम देखते हैं कि menstruation cycle sometime it like 28 days का होता है, sometime it is 35 days आता है, like कभी बहुत early भी आ जाता है. So like I wanted to know what is the normal menstrual cycle, and if it get delay like beyond 35 days, do we consider कि ये abnormal है and should we consult to a doctor in that situation? Normal menstrual cycle is not exactly 28 days or 30 days. It vary with women to women. It may range from somewhere between 21-22 days to 35 days. So if a woman is having regular cycle every 21 days, that is normal for her. And if it happens 35 days every cycle, it is normal for her. So range could be anywhere between 21 to 35 days. If for a woman who is having 21 days, now period had gone 35 days or so, it may be abnormal for her. And definitely less than 21 days or more than 35 days is abnormal. Cycle length is not normal. Then we need to evaluate further. इनके root causes क्या होते हैं? जैसे menstrual cycle delay हो जाता है, like स्ट्रेस का रोल मतलब ज्यादा रोल प्ले करता है, या फिर हमारे डाइट वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सो जस्ट वांटेड टू नो कि what are the reasons for period get delayed or maybe we get early periods? Okay. That is irregular menstrual cycle, and there are lots of causes of irregular menstrual cycle. सबसे पहले तो जब adolescent girl का period शुरू होता है, that is menarche के initial 2-3 years जो होते हैं, उस समय जो हमारे period का controlling system होता है hormone estrogen progesterone का, that is hypothalamus and pituitary in the brain, that is known as hypothalamo pituitary axis, HPO axis. So वो immature होता है. तो एक adolescent girl को menarche के बाद 2-3 साल period थोड़े से मे बी जल्दी आ जाए, मे बी लेट आए, 6 month भी नहीं आ सकता. So that is irregular cycle. सबसे common cause तो एक वो है. उसके बाद हम आते हैं reproductive age group में. So there may be various causes like hormonal imbalance. These days commoner is PCOS, maybe some history of thyroid problem, then some prolactin issues. Then it could be excessive weight gain or weight loss. What you said, stress, yes, stress has important role to play, be it physical stress or emotional stress. It again affect HPO axis. HPO axis affect होता है, उससे फिर irregular ovulation होता है, irregular periods होता है. डॉक्टर जैसे आपने बताया अभी पीसीओडी वगैरह की वजह से भी रेगुलर साइकिल्स होते हैं. अब पीसीओडी से मैंने जो थोड़ा पढ़ा है that 1 in every 3 women are affected with PCOD or maybe PCOS. Okay, so some kind of symptoms like we are having. PCOD first of all and PCOS are the same. ये दोनों सेम है क्या? और ये मतलब क्यों इतना ज्यादा आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि स्पेशली यंग जनरेशन जो है, हमारे वाली जनरेशन, उसमें बहुत ज्यादा कॉमन ये देखा जा रहा है. बिल्कुल. इज इट बिकॉज ऑफ अ लाइफस्टाइल जो हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रहा है, या स्ट्रेस है, लाइक क्यों है? बिल्कुल सही कहा आपने. हमारे टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा कॉलम होता था पहले पीसीओडी का, एंड नाउ इट इज अ ह्यूज टॉपिक. देयर सो मेनी. So PCOD and PCOS, first I would like to tell you what it is. It is a very common condition these days. Rather, I would say it is a new age pandemic. And the incidence is almost 10% these days. So what happens? It is a problem related to the ovary and hormonal imbalance. PCOD and PCOS is the spectrum of the same disease process. So what happens here is it affects from adolescent girl to reproductive age women to later in life, and it has different implication in different age group. So what happens here? There are small cyst formation in the ovary, which is a particular pattern known as necklace pattern.
एंड देयर इज सेंट्रल इकोजेनिक स्ट्रोमा होता है कि ओवरी में सेंट्रल इकोजेनिक स्ट्रोमा ज्यादा है, पेरिफेरी में छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं. एवरी साइकिल, जैसे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में अभी सुना कि हर साइकिल में एक एक मैच्योर होता है, बट यहाँ पे एक एक मैच्योर होता ही नहीं है. बहुत सारे फॉलिकल हैं, नन ऑफ द फॉलिकल मैच्योर्स. सो एक प्रॉपर प्रोसेस का ओव्यूलेशन नहीं होता है एंड देन पीरियड नहीं होते हैं. सो इसका कॉज, एज यू राइटली सेड, इट इज डाइट, स्ट्रेस. डाइट आजकल हमारी प्रोसेस्ड, मोर ऑफ प्रोसेस्ड फूड है, विच इज रिच इन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी चीजें ज्यादा हैं. सो ये सारी चीजों से वेट गेन होता है. वेट गेन से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, रेगुलर ओव्यूलेशन नहीं होता है. स्ट्रेस हैज अ इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. अगेन, लाइफस्टाइल स्ट्रेस will lead to more eating which is not good, not a healthy diet, and will lead to obesity, will lead to insulin resistance, this kind of polycystic ovary syndrome. And when PCOD is irregular ovulation and overweight, when metabolic issues are added to this PCOD, it is called PCOS. So these days it is usually PCOS is the terminology which is being used, because here there will be acne, जिसको मुहासे कहते हैं, हेयर ग्रोथ ज्यादा होता है, एंड उसके साथ बहुत सारे मेटाबॉलिक इश्यूज लाइक लिपिड एबनॉर्मेलिटीज आ जाते हैं. देन लिपिड एबनॉर्मेलिटी के साथ इंक्रीज चांसेस ऑफ हैविंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन इन द लेटर लाइफ. सो ये एक विशियस सर्कल है जो आजकल, सो वी नीड टू ब्रेक दिस साइकिल. इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है. So these are the things what happens. So how can we break this cycle? Means how can we overcome with this problem, Okay. PCO? Like should we do yoga या फिर कुछ exercise, basic diet change वगैरह? So does it really help? Yes, that is the cornerstone of treatment of PCOD or PCOS. Good lifestyle and dietary habits. That is the most important thing. आपके हम मेडिकेशन उसको दे सकते हैं, पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, पैथोफिजियोलॉजी कुछ एक्सटेंट तक नॉर्मल हो जाएगी, बट इट वोंट गेट करेक्टेड परमानेंटली. सो बेसिक थिंग व्हाट वी नीड टू do is lifestyle modification and dietary modification and yoga and exercise. We need to take fiber rich food, then mindful eating, and yoga exercise, moderate exercise at least 5 days a week for 30 to 45 minutes is the need. And then yoga has multiple advantages. Actually it releases good chemicals in our body like dopamine, serotonin, endorphins. ये सारे आपके मूड को, स्ट्रेस को कम करते हैं, मूड हैप्पी मूड को बढ़ाते हैं. देन गुड स्लीप, स्ट्रेस कम ले स्लीप टाइम से. ये सारी चीजें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल और डाइट के अच्छे होने की वजह से चीजें कुछ हद तक इम्प्रूव हो सकती हैं. एंड देन ऑब्वियसली comes the role of medication if needed. डॉक्टर, अभी जैसे हमने बात करी पीसीओडी, पीसीओएस की, राइट, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की. सो अभी जैसे मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे क्या होता है कि कभी कभी पीरियड्स बहुत ज्यादा, काफी केसेस में देखा जाता है कि वुमेन्स को या तो बहुत हैवियर पीरियड्स हो जाते हैं और बहुत पेनफुल होते हैं. सो उसमें क्या होता है कि दे टेक दैट पेन किलर. ऐसे में हमें मतलब डॉक्टर को किस टाइम पे हमें कंसल्ट कर लेना चाहिए कि हाँ अभी मतलब मुझे बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड हो रहा है, हाँ आई शुड कंसल्ट टू अ डॉक्टर. So basically what is painful period and heavy period? So painful period जो होता है, that is in medical terminology हम उसको डिस्मेनोरिया कहते हैं. डिस्मेनोरिया दो तरह के हो सकते हैं, एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया या स्पैस्मोटिक डिस्मेनोरिया होता है जिसका कोई एक डिफाइंड कॉज नहीं है. इट इज बिकॉज ऑफ द सम केमिकल रिलीज विच इज नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स. वो रिलीज होता है, उसकी वजह से यूट्रस के जो वॉल में मसल्स हैं उसमें स्पैज्म होता है, ब्लड वेसल में स्पैज्म होता है, एंड दैट इज व्हाई दैट क्रैम्पी टाइप ऑफ पेन occurs and associated with backache also. So this is spasmodic और प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जिसके लिए हमें बेसिकली गर्ल को या फीमेल को रीअश्योरेंस, थोड़े से हॉट वाटर बैग यूज, वार्म बाथ विल हेल्प, सम मॉडरेट एक्सरसाइज विल हेल्प. So these are the things are advised. If the girl is not relieved, then comes the role of medication. If I talk about the second kind of dysmenorrhea, which is secondary dysmenorrhea or congestive dysmenorrhea, what happens here? It is because of some pathology going on in around uterus. That is why this pain occurs. And usually bleeding may be heavy also. So heavy period का definition ये है कि अगर ये
पेन और हैवी पीरियड दोनों में इफ इट इज इंटरफेयरिंग विद द विमेन्स डेली रूटीन एक्टिविटी, डेली लाइफ को हैम्पर कर रहा है और वो अनीमिक हो रही है, इट इज परसिस्टिंग फॉर मोर देन 7 days, हर एवरी 1 to 2 hour उसको पैड चेंज करना पड़ रहा है, या रात में वो 2-3 बार उठ के पैड चेंज कर रही है. सो दीज आर द थिंग जो हमें ये इंडिकेट करता है कि उसको पीरियड भी हैवी हो रहे हैं. सो देन इट नीड्स फर्दर इवेल्युएशन. एंड अगर वो नॉन मेडिकल मैनेजमेंट से पेन नहीं कंट्रोल हो रहा है, देन कम्स द रोल ऑफ मेडिकेशन. मेडिकेशन में हम यूजुअली पेन किलर्स एडवाइस करते हैं जो कि एनसेड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, जिसमें जो विच इज एंटी, जो प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है उसके अगेंस्ट काम करता है, सो इट गिव्स रिलीफ इन पेन. So that medication is advised, and in some cases we do prescribe hormonal pills also if women is not relieved. And जो secondary type का dysmenorrhea मैंने आपसे डिस्कस किया, उसमें depending on the cause, what is the cause, is it endometriosis, is it PID, is it fibroid uterus, so treatment will be directed accordingly. जैसे ही कोई कपल डिसाइड करता है कि हाँ हमें फैमिली प्लानिंग करनी है, तो फर्स्ट उनके माइंड में थॉट आता है कि हाँ भाई प्री कंसेप्शन जो एक काउंसलिंग होती है, वेदर वी शुड गो फॉर दिस और नॉट. सो अभी ये काफी मतलब एक तरीके से हमारी जनरेशन में देखा जाता है कि हाँ हम इसके लिए जाते हैं सो दैट वी गेट द राइट काइंड ऑफ एडवाइस. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? सो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग. एक्चुअली हम ज्यादातर विमेन देखते हैं कि वो प्रेगनेंसी होके हमारे पास आते हैं, बट अगर कंसीव होने से पहले आए, दैट इज अ वेरी गुड थिंग. जिस समय हम उनके हेल्थ का प्रॉपर चेकअप कर सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है रिलेटेड टू देयर हेल्थ, देयर लाइफस्टाइल, देयर वेट रिलेटेड, सो वी कैन एडवाइस अकॉर्डिंगली, सो दैट वंस दे कंसीव, इफ दे नीड सम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, some treatment prior to that, some vaccination prior to that, so that the outcome of the pregnancy and delivery will be good from the point of mother and the healthy baby. ये भी बोला जाता है कि हाँ बिफोर प्रेगनेंसी 3 months जो उससे पहले होते हैं, उस टाइम पे भी यू शुड गेट सम काइंड ऑफ प्रीनेटल विटामिन्स. हाउ डज इट हेल्प? सो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिया जाता है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है फॉलिक एसिड, है ना. वो फॉलिक एसिड इट इज वन ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, जिसका की रोल होता है बच्चे के नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली डेवलप करने में. वो आइडियली जब भी एक कपल कंसीव करने को प्लान करता है, उससे 3 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए, बिकॉज देन इट प्रिवेंट्स, बिकॉज जो नर्वस सिस्टम होता है, हम जब तक प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है, विमेन को पता चलता है 1-1.5-2 महीने, तब तक नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है. सो दैट इज वाई 3 month पहले फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन होना चाहिए. और अगर हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में, इफ द विमेन इज एनीमिक, we can give her iron preparation, something, so that her hemoglobin is good, so that she will remain healthy during pregnancy, as well as baby will have good iron store. It is the time they can lose weight if she is overweight. And if there is any problem like blood sugar estimation is also done, because these days the mothers are planning their pregnancy at an advanced age with the prevalence of diabetes and things are more. So we need to check her sugars also. If she is overtly diabetic or family history of diabetes, then we assess accordingly. Also, we see if there is a family history of any genetic problem like thalassemia, Down syndrome. So उस cases में भी हम कपल का इवेल्युएशन करते हैं एंड अकॉर्डिंगली एडवाइस करते हैं, या तो पहले या कंसीव करते हैं, तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एक काफी कॉमन क्वेश्चंस हम देखते हैं जो पूछा जाता है ड्यूरिंग प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में, कि हम अपनी फर्टिलिटी विंडो को ट्रैक कैसे करें, राइट? लाइक फर्टिलिटी विंडो एक्चुअली होता क्या है और उसे इफेक्टिवली हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं. सो लाइक हमें कंसेप्शन में मतलब इट विल रियली हेल्प. Fertility window or fertile period is a particular period during the menstrual cycle of a woman. So what happens, जो menstrual cycle को अगर हम recall करें, जो हमने third phase आया था ovulation का phase, that is the phase जहां पे conceive करने का chance maximum होता है. So ovulation जो होता है वो usually जो next period आया उससे 14 days पहले होता है. And initial window जो होता है from the period of menstruation till ovulation can vary. So in a woman who is having a 28 days cycle जिसका हो रहा है, उसको तो 14th day egg बनेगा.
और एग जो है वो वायबल रहता है, जिंदा रहता है फॉर 12 to 24 आवर, और जो स्पर्म जिंदा होता है वो जनरली 3 days, मे बी अप टिल 5 days जिंदा होता है. सो अगर इस समय प्रेगनेंसी प्लान करने की कोशिश करेगी विमेन, तो दिस इज अराउंड ओव्यूलेशन इज द पीरियड विच इज नोन एज fertility period or fertility window. So in a woman having 28 days cycle, the ovulation will be on 14th day. But एक औरत को जिसको कि 21 दिन का पीरियड है, उसको 7th डे, बिकॉज लास्ट का 14 डे फिक्स है, इनिशियल पीरियड कैन वेरी, तो 7th डे, 7 to 12 13 डेज इज द पीरियड जबकि उसका फर्टिलिटी विंडो है. जिसका पीरियड डिलेड है 35 डेज, तो उसका 21 डेज जो है उसके अराउंड जो पीरियड है वो फर्टाइल पीरियड है. सो दैट इज हाउ वी टेक द हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसका एवरेज साइकिल लेंथ लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली उसको बताते हैं कि इस समय तुम्हारा ओव्यूलेशन होगा टेंटेटिवली एंड इस समय कंसीव करने का चांस मैक्सिमम. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जनरली यही होता है कि हाँ 28 डेज का साइकिल होता है एंड देन 14 डेज जैसे आप बता रहे हैं. सो यही मतलब मोस्टली जो कॉमन अवेयरनेस होती है यही होती है. बट नाउ जैसे आपने डिफाइन किया कि हाँ 28 डेज 21 डेज का अगर साइकिल है तो ओव्यूलेशन 14 डेज ये काउंट करके ऐसा होता है. दैट्स सो वंडरफुल. सो डॉक्टर, हर कपल के माइंड में एक और जैसे क्वेश्चन रहता है कि सपोज उन्होंने काफी ट्राई कर लिया, लाइक फॉर 3-4 months दे आर ट्राइंग नेचुरली बट स्टिल प्रेगनेंसी नहीं हो रही है. सो अकॉर्डिंग टू यू, लाइक कितने टाइम बाद उन लोगों को डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए कि हाँ दिस इज द राइट टाइम, मतलब हमें डॉक्टर की एडवाइस सीख करनी चाहिए? अ कपल हु इज प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी, if they come to us for an evaluation, first I need to see if there is an obvious medical condition in them, and then we need to take history for how long they are married, whether they are staying together or no, if they are using any contraception or no, and any obvious cause of infertility. If it is not there, they are quite healthy, cycles are regular, no other comorbidities, और women less than 35 years की है, तो हम उनको 12 month consecutive, अगर वो 1 साल तक साथ रह रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं एंड दे आर नॉट कंसीविंग, तो इट आस्क फॉर फर्दर इवेल्युएशन. और अगर 35 से ज्यादा है women की एज एंड शी हैड ट्राइड without using any contraception for 6 months, so this is the time we tell them to get further assistance for conception, because as the age advances, the eggs in the ovary gradually get exhausted. डॉक्टर, एक कॉमन एडवाइस जो दी जाती है कि आप स्ट्रेस फ्री रहो, राइट, बट इट इज इजियर सेड देन डन, राइट. सो ऐसे में आप क्या मतलब रिकमेंड करती है, या सम स्मॉल टिप्स इफ यू कैन रिकमेंड कि हम कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं इन दैट फास्ट पेस लाइफ? सो एक तो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट स्ट्रेस हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले इन कंसेप्शन. सो समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि कपल ट्रीटमेंट ले रहा होता है इनफर्टिलिटी का और कंसीव नहीं करता, उसके बाद हम छोड़ देते हैं, चलो अब जाओ, छोड़ दो 2-3 महीने, तो पर्सन उस समय प्रोबेबली स्ट्रेस फ्री हो जाता है और वो कंसीव होके आ जाता है. सो स्ट्रेस फ्री होना बहुत जरूरी है. देन स्ट्रेस फ्री के साथ अपना वर्क लाइफ बैलेंस बनाएं, अपना स्लीप एडिक्वेट लें और हेल्दी डाइट पे जाएं, थोड़ा योगा मेडिटेशन, सो दैट पॉजिटिव एटीट्यूड रहे. These are the things which are helpful in conceiving. आज के टाइम पे women are giving priority to their career also. Like पहले के जैसा नहीं है कि हाँ we get married and then after 2-3 years okay ठीक है, मतलब we get pregnant and everything. So ऐसे में क्या होता है कि जब already मतलब we are getting married after 25 or somewhere like 20-30 age के around, and then by the time we get 35 then we plan the pregnancy. So ऐसे में obviously this infertility rate के cases थोड़े आजकल ज्यादा भी हो रहे हैं because of that. So ऐसे में like what is the right age to get pregnant? अगर right age देखा जाए तो 20s and early 30s is the time जबकि family planning करना चाहिए. But obviously there are lots of things these days, education है, career है, which takes front sheet. सो इन केसेस में कई बारी मैरिज की एज लेट होती है, फिर वो फैमिली प्लान लेट करते हैं. तो ऐसे में वन थिंग कपल शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक इन विमेन विच इज टिकिंग डे बाय डे.
So one need to prioritize, obviously career prioritize करना है, okay, but this thing should also be taken into consideration. ये भी consider करो कि एक एज के बाद अगर प्रेगनेंसी प्लान करना चाहेंगे तो भी नहीं होना मुश्किल होगा और मेडिकल हेल्प लेनी पड़ सकती है. सो कहीं ना कहीं दोनों चीजों को वर्क और लाइफ बैलेंस करने के लिए कपल को सोचना चाहिए और एक अप्रोप्रिएट टाइम पे प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए. सो इफ वी प्लान द प्रेगनेंसी आफ्टर 35 एज, तो उसके साथ क्या रिस्क एसोसिएट होते हैं? ओके, सो 35 जैसे मैंने कहा कि एडवांस एज मदर का होता जाता है तो एग्स धीरे धीरे एग्जॉस्ट होते हैं. होता क्या है कि एक हमारे ओवरीज में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एग्स होते हैं. लाइक व्हेन द बेबी इज बॉर्न अराउंड 1 to 2 मिलियन, गर्ल बेबी के ओवरी में 1 to 2 मिलियन एग्स होते हैं. जब वो प्यूबर्टी पे पहुंचती है तो 3 to 5 लाख एग्स होते हैं और जब उसके थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव करियर में अराउंड 300 to 500 एग्स रिलीज होते हैं. क्योंकि हर महीने आपने जैसे देखा कि कुछ मल्टीपल नंबर ऑफ एग्स रिक्रूट होते हैं, उसमें से एक ही डोमिनेट होता है. तो वो मल्टीपल रिक्रूट होके जो रिप्रोडक्टिव करियर में 300 to 500 एग ओव्यूलेट होता है. जैसे हम 35 एंड बियॉन्ड पहुंचते हैं, मतलब 30s में जाते हैं, तो डे बाय डे हर साइकिल में एग्स एग्जॉस्ट होते चले जाते हैं. अब वो जब एग के नंबर कम है ओवरी में, इट कैन नॉट रीजेनरेट, मतलब दोबारा से नया नहीं फॉर्म हो सकता. जो हमारे स्टॉक में है वो ही रहेगा, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो बन नहीं रहा है. सो दैट इज हाउ द मोर देन 35, जब विमेन 30s में आ जाती है, स्पेशली मोर देन 35, 40, तो नंबर ऑफ एग्स बहुत ग्रेजुअली कम होते जाते हैं और 40s के बाद और कम होते हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज द क्वालिटी ऑफ एग इज ऑल्सो नॉट गुड. सो एक तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन कम होता है, दूसरा अगर कंसीव हुआ तो मिसकैरेज होने के चांसेस भी हो जाते हैं और बेबी में कुछ प्रॉब्लम, कुछ पर्टिकुलर डिफेक्ट्स होने, जेनेटिक डिफेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. इन दैट कंडीशन डू यू रिकमेंड कि हाँ वुमेन शुड गो फॉर द एग फ्रीजिंग? जैसे अभी आजकल हम देखते हो दैट इफ दे प्लान फैमिली प्लानिंग एट अ लेटर स्टेज, मे बी आफ्टर 40s. सी एम्ब्रियो फ्रीजिंग तो मैरिड कपल दे कैन फ्रीज देयर, जो स्पर्म और एग से हम उसको एम्ब्रियो बनाते हैं और एम्ब्रियो फ्रीज तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है. That is a known thing and they can do it, and whenever they want they can, by the IVF technique, they can get a baby. But this egg freezing is not a new concept, but it is an emerging concept, and this is a very good thing, and this is for those women who are single and they have a career priority. They have not chosen their partner, they don't have sperm to fertilize. So in those cases egg freezing, जिसको हम social egg freezing भी कहते हैं, that is a very good thing. This egg freezing actually freezes their fertility for a particular time being, so they don't need to worry about the biological clock which is ticking, and they can plan pregnancy later on. It is a very good choice and women should think, but they should think not very late in the life, 35, 40s में. They should think little earlier when the egg quantity and the quality is good. Like maybe 25 to 30 एज में. Yes. So like ठीक है, हमने 25 एज या 30s एज में हमने एग फ्रीज कर दिया. So like if we plan to get pregnant around 40 एज या 45, so is that possible? Yes, it is. Egg freezing है, वो frozen egg जो होता है usually as per the हर कंट्री के या IVF गाइडलाइंस अलग अलग होती हैं. तो हमारे कंट्री में इट इज पॉसिबल टू फ्रीज देम फॉर ऑलमोस्ट 10 years, and whenever women want to conceive they can be taken out, and then fertilization and can be by IVF technique, they can get their own biological baby. That is so the after advantage. 10 years also 10 years quality of the egg years. will be. No, it is frozen, so the quality will be, if they have given their egg at the age of 25, so the age of the egg will be 25, not that only. 40. Okay. Now what the IVF specialist will do, they'll prepare the lining of the uterus and then they'll fertilize egg with the sperm and they'll implant करेंगे उसको, उस एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर. ये जो एग फ्रीजिंग है, जो इसका कॉस्ट क्या है अपने इंडिया में? लाइक इज इट वेरी एक्सेसिबल फॉर अ कॉमन पीपल? यस, नॉट अ वेरी कॉस्टली थिंग, रीजनेबली कॉस्टली तो है बट इट इज अफोर्डेबल
few of the corporates like Apple and Meta, they are giving facility to their employees also. Okay. And I wasn't aware of that. And the cost, basically egg freezing में करते क्या है, egg freezing में ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं. स्टिमुलेट करने के लिए हमें कुछ ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो उससे मल्टीपल एग फॉर्म करते हैं, फिर उन एग को थ्रू अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर उनको रिट्रीव किया जाता है, और रिट्रीव करके उनको फिर लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री पे स्टोर कर दिया जाता है. कॉस्ट जो है एक पर साइकिल की है, तो हमें फर्स्ट साइकिल में ही खूब सारे एग मिलने के चांसेस हैं. अगर एज एडवांस है तो पर साइकिल में हो सकता है हमें नंबर ऑफ एग्स कम मिले. सो वी मे नीड टू स्टिमुलेट हर नॉट 1 cycle, 2-3 cycle. So per cycle cost is around 1.2 lakhs to 1.56 lakhs. It vary with the technology used and the amount of ovulation inducing agent used in a particular woman, जो कि उसके प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा कि एज क्या है, क्वालिटी ऑफ एग क्या है, इन पे डिपेंड करेगा. तो कॉस्ट ऑफ पर साइकिल फ्रीजिंग इज समवेयर 1.2 to 1.5 lakhs. एंड फिर स्टोरेज का कितने साल तक आप स्टोर करते हो उसका कॉस्ट आता है, दैट इज अराउंड 30,000 to 40,000 पर ईयर ऑफ स्टोरेज. सो टेंटेटिव ये है, बाकी इट में वेरी somewhat depending upon the scenario. इसके बाद आपने अपना एग फ्रीज करा दिया, उसके बाद वुमेन हैज टू टेक सम रेस्ट फॉर फ्यू डेज या फ्यू मतलब मे बी कुछ वीक्स के लिए रेस्ट करना होता है. जनरली कितना एडवाइस किया? ज्यादा लंबे रेस्ट की जरूरत तो नहीं होती है, बिकॉज जो मैंने बताया आपको एग रिट्रीव करते हैं, दैट इज अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर. सो एक तो हमने ओवरी को स्टिमुलेट किया तो ओवरीज हैव बिकम बिग, बड़े बड़े हो जाते हैं. उनमें हमने कोई भी नीडल, हमने एग रिट्रीव किया काइंड ऑफ नीडल जिससे हम उसको पिकअप करते हैं, तो कई बार उसमें ब्लीडिंग या पेन होने का चांस होता है. So women need to take rest for few days, not that weeks or so, but few days rest. Better to avoid exertion and take rest. That is what is needed. जैसे आपने बताया कि जो गर्ल चाइल्ड होता है, okay, so she is born with a fixed number of eggs, okay. So by like जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो कम होते जाते हैं. Obviously by the time of puberty, like जो मिलियंस हैं वो लैक्स में आ जाते हैं, okay. सो ऐसे में लाइक जो एक ओवेरियन रिजर्व टेस्ट होता है, ओके, जो मतलब डॉक्टर कभी कभी बोलते हैं कि आप ये भी टेस्ट करा सकते हो कि एक्चुअली जैसे आपके एग्स इस टाइम पे है कितने. सपोज अगर क्या है कि मैं 30s की एज में जा रही हूँ, ठीक है, ये एग फ्रीज कराने के लिए, पता लगे मेरे 30s की एज में इतने एग्स नहीं है. सो व्हाट इज दैट ओवेरियन रिजर्व टेस्ट और ये कैसे होता है? ओवेरियन रिजर्व टेस्ट इज अ गुड कॉन्सेप्ट दीज डेज. बेसिकली ये हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उस विमेन के ओवरीज में एग्स कितने हैं, एंड इनडायरेक्टली इट गिव्स एन इंडिकेशन कि उसकी फर्टिलिटी कैसी है. वो अपने आप कंसीव कर पाएगी या उसको हेल्प की जरूरत होगी, ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग एजेंट की, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक की. और एंड उसको ये भी सोचना है कि उसको जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए और शी कैन डिले इट. सो कुछ टेस्ट अवेलेबल होते हैं जिसमें कि ब्लड टेस्ट है और अल्ट्रासाउंड है. ब्लड टेस्ट में एक तो हम एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट करते हैं, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी में जो फॉलिकल्स बन रहे होते हैं उनके सेल्स को ग्रैनुलोसा सेल्स कहते हैं, उन सेल से रिलीज होता है, दैट इज एंटी मुलेरियन हार्मोन. तो इसको हम ब्लड में टेस्ट करते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द लेवल वी कैन असेस. सेकेंड टेस्ट होता है जो कि हम पीरियड के सेकेंड थर्ड डे में FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको टेस्ट करते हैं. उसके लेवल के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि उसका ओवेरियन रिजर्व कैसा है. एंड थर्ड इज अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड में हम पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में, मतलब पीरियड के विद इन 1 week में हम अल्ट्रासाउंड करके ये देखते हैं कि उसमें एंट्रल फॉलिकुलर काउंट AFC, एंट्रल फॉलिकुलर काउंट क्या है. इन तीनों के कोरिलेशन में हम एक असेस along with the age of the mother we can assess what is her ovarian reserve, and accordingly we can guide her कि she should plan, delay, if she'll delay, what help she may need later. Sometime क्या होता है कि ओवरी जो होती है it stop ovulating, right? So इस ये भी एक वो होता है रीजन कि इनफर्टिलिटी का, कि doesn't get ovulate. So उसके क्या क्या रीजन होते हैं? Why do you think it stop ovulate, doesn't ovulate? बहुत सारे रीजन होते हैं ओवरी ओवुलेशन स्टॉप होने के. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज दीज डेज.
देन देयर इज हार्मोनल डिस्टर्बेंस लाइक थायराइड प्रॉब्लम अगर है तो भी इरेगुलर ओव्यूलेशन होता है. देन डायबिटीज, स्पेशली ओवर डायबिटीज है, देन इट मे कॉज हार्मोनल डिस्टर्बेंस. स्ट्रेस है, इट इंक्रीजेस द पर्टिकुलर हार्मोन एंड देन ओव्यूलेशन इज डिसरप्टेड. एक्सेसिव वेट गेन है, एक्सेसिव वेट लॉस है, दोनों ओव्यूलेशन को हैम्पर करते हैं. टू मच ऑफ एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा ओवर एक्सरसाइज करना अच्छा है, बट टू मच ऑफ वेट लॉस, टू मच ऑफ एक्सरसाइज, अगेन इट अफेक्ट आवर HPO एक्सेस एंड देन ओव्यूलेशन इरेगुलर होगा. और कुछ केसेस में कुछ आजकल एनवायरमेंटल टॉक्सिन इतने सारे हैं, ठीक है ना, गैजेट्स यूज है ना, देन एनवायरमेंटल टॉक्सिन में माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, ऑल दीज प्ले, नॉन स्टिक कुकवेयर के जो केमिकल्स हैं, all these things play a role in this. And next question is, what exactly is the premature ovarian insufficiency? उसके अर्ली साइन क्या क्या होते हैं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल मेनोपॉज? जैसे हम कभी कभी इससे कंफ्यूज हो जाते हैं मेनोपॉज से. प्रीमेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी जैसा कि नाम ही बता रहा है, प्रीमेच्योर मतलब टाइम से पहले, ओवेरियन ओवरी इंसफिशिएंसी मतलब उसका फंक्शन कम हो गया. तो अगर समय से पहले ओवरी अपना काम करना कम कर दे तो इंसफिशिएंसी हो गया, और अगर बिल्कुल काम करना बंद कर दे तो उसको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं. ठीक है. सो ये एक अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होता है एंड इसके बहुत सारे हेल्थ रिस्क. एक तो ओव्यूलेशन, इरेगुलर ओव्यूलेशन हो रहा है तो इरेगुलर पीरियड होगा, फर्टिलिटी वोंट बी गुड, एंड अगर फेलियर हो गया तो फिर वो इनफर्टाइल है. बहुत सारे प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या इंसफिशिएंसी के बहुत सारे हेल्थ इम्प्लीकेशंस होते हैं, which is more or less similar to menopause, but yet it is very dissimilar. तो इसके लाइक सिम्टम्स क्या होते हैं? Okay, so symptoms as I said कि menopausal symptoms ही होते हैं, because ये menopause हुआ है, prematurely हुआ है, but usually the symptoms are more profound and intense and has a lots of health implication on the women's body. So symptoms अगर हैं तो एक तो hot flashes हो गया, देन मूड चेंजेस होता है जिसमें कि एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, देन वजाइनल ड्राइनेस होता है बिकॉज देयर इज नो हार्मोन इन द बॉडी, देन यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कुछ लोगों को, अनेबल टू होल्ड द यूरिन बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन इनसफिशिएंसी, फर्टिलिटी हैम्पर हो ही रही है, देन बोन हेल्थ अफेक्ट होता है बिकॉज ईस्ट्रोजन इज वन हार्मोन जो कि बोन हेल्थ के लिए जरूरी होता है, सो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं. So, and then the risk of cardiovascular risk, heart problem, thyroid problem, diabetes, these also increases. Is there a link between smoking and premature ovarian failure या फिर early menopause? Yes, these things have a role in this premature ovarian insufficiency or menopause. What happens? Smoking causes production of some chemicals. स्मोकिंग में जो केमिकल्स होते हैं लाइक दीज आर साइनाइड, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, दे आर टॉक्सिक टू द ओवरीज, दे डैमेज ओवरी एंड ओवेरियन फॉलिकल्स. सो व्हाट हैपेंस, जो एक ग्रेजुअली एग्जॉस्ट हो रहे हैं उनके एग्जॉशन को ये स्पीडिफाई कर देता है. सो जो मेनोपॉज होने चाहिए 45 के 50 एज में, स्मोकर में देखा गया है कि मेनोपॉज थोड़ा जल्दी हो जाता है, मे बी 1 साल, 2 साल, 4 साल पहले हो जाता है. सो स्मोकिंग हैज एन इफेक्ट ऑन दिस. Alcohol also? Alcohol also has a role, हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करता है, देन मे बी नॉट एग्जैक्टली मेनोपॉज का बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग रोल नहीं है, बट अल्कोहल हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन adolescent health, women health, reproductive health. डॉक्टर, इनफर्टिलिटी इज ऑन राइज दीज डेज. हम देखते हैं कि काफी वेरी फ्यू पीपल अराउंड मी आर गेटिंग प्रेग्नेंट नेचुरली. सो आपके अकॉर्डिंग एक कपल को कितने टाइम तक नेचुरली ट्राई करना चाहिए एंड लाइक उसके बाद कितने टाइम बाद दे शुड सी कि हाँ भाई अब मुझे अब डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए? सो एक कपल को अगर एज सच ऑब्वियस कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है एंड दे शुड ट्राई ऑलमोस्ट अ ईयर इफ दे आर लेस देन 35 years ऑफ एज. 1 साल तक उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, देन मेडिकल अटेंशन सीख करना चाहिए. और अगर विमेन की एज 35 है तो उसके बाद द टाइम जो हम देते हैं वो हम थोड़ा कम 6 month देते हैं. 6 month
तक अगर ट्राई करने के बाद कंसीव नहीं करते हैं, then they should go ahead and seek medical They should go for advice. IVF. No, not IVF. Okay. Maybe some causes which are there, they may not know what is fertile period, what are the time when she's ovulating. If she's overweight, we may advise her to lose weight so that she'll ovulate and will conceive herself. If there's some thyroid problem, if we correct that, thyroid की medicine दिया, thyroid correct किया, तो she'll have ovulation regular होगा तो conceive अपने आप कर जाएगी. So it does not call for IVF straight away. We need to evaluate, we need to test the male partner also. उसके semen analysis है ना, वो सब करा के देखते हैं. अगर सब कुछ ठीक है और इतना टाइम हो गया है तो हम इनिशियल स्टेप में कुछ ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग एजेंट्स देते हैं. ठीक है, ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं. अगर उसमें IVF is the last stage. First step is spontaneous try and conceive. If they don't conceive, then the ovulation induction, एक बनने की कुछ दवाइयां हैं वो देते हैं एंड उसके साथ ट्राई करते हैं. अगर वो भी नहीं कंसीव हो रहा तो ओव्यूलेशन इंडक्शन प्लस IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें कि सीमेन को वॉश करके गुड क्वालिटी स्पर्म्स को इंसेमिनेट करते हैं. और उस ये भी अगर फेल हो जाता है देन द IVF. बट ऑल्सो डिपेंड ऑन द कॉज. अगर किसी में हमें ये बीच के स्टेप को ओमिट करना है, द कॉज ऑफ नॉट गेटिंग कंसीव इज समथिंग जिसमें कि हमें ये स्टेप यूज ही नहीं करना है, देन लाइक ट्यूबल ब्लॉक है तो उसमें अपने आप कंसेप्शन होना मुश्किल है. बाइलेटरल दोनों साइड की ट्यूब्स ब्लॉक है तो उस केस में स्ट्रेट अवे विमेन को IVF के लिए जाना पड़ेगा. Because eggs are released from the ovary, they'll travel through the tube and they'll come to the uterus. अगर वो पैसेज ही दोनों ब्लॉक है तो हम बीच का प्रोसेस कर ही नहीं सकते. Then they need IVF. एग निकालो बाहर, फर्टिलाइज करो स्पर्म से एंड देन यू पुट इट इनसाइड. सो IVF के अराउंड काफी सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर IVF कराते हैं तो बच्चा नॉर्मल नहीं हो रहा है, कुछ एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं बेबी के अंदर. सो इज दैट ट्रू? नॉट एग्जैक्टली. जो मिसकंसेप्शन है कि प्रॉब्लम होगी, ऑल्दो आजकल तो पीपल आर क्वाइट अवेयर, तो ऐसा कुछ नहीं होता. अगर ओवेरियन रिजर्व अच्छा है, यंग एज है, क्वालिटी अच्छी है तो यूजुअली जेनेटिक प्रॉब्लम के चांसेस कम होते हैं. हाँ, एडवांस एज है देन स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन हो या IVF हो, दोनों में एक जेनेटिक प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं. सो व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्शंस और फियर अबाउट IVF? कॉमन मिसकंसेप्शंस जो हैं वो ये है कि एक बार IVF कराया तो 100% सक्सेस होना चाहिए, which is not so. Even in the best of the hand, the chances of conception is maybe 40, 50, 60%, not more than that. So guarantee नहीं होता फर्स्ट IVF में. लोग सोचते हैं कि एक बार IVF फेल हो गया तो अगला IVF भी सक्सेसफुल नहीं होगा. ऐसा भी नहीं है. Sometimes one need to go ahead with 2-3 IVF cycles to become successful. And third misconception है कि हमेशा ही multiple pregnancy होती है. हाँ, I wanted to ask that कि मैंने भी देखा है कि IVF के अंदर mostly twin baby मतलब होते हैं. The incidence of twin pregnancies has increased because आजकल IVF बहुत ज्यादा जितने भी होते हैं twin pregnancy, but it is not always that अगर IVF है तो twin ही होगा. It is not always. थर्ड है कि ऑब्वियसली जैसा जेनेटिक डिफेक्ट के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, वो भी जरूरी नहीं है कि जेनेटिक डिफेक्ट होता है. एक बैकग्राउंड रिस्क तो हर एक नॉर्मल विमेन भी कंसीव करती है, तो एक बैकग्राउंड रिस्क जेनेटिक डिफेक्ट का या एबनॉर्मेलिटी का होता है, तो वो रिस्क है. यहाँ पे अगर विमेन की एज ज्यादा है तो वो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है. सो फिर हम उस हिसाब से प्रेगनेंसी में टाइम टू टाइम स्क्रीन करते हैं. कोई जो विमेन है अगर उसको IVF ट्रीटमेंट देते हैं, ऑब्वियसली वो इमोशनली काफी चीजों से डील कर रही होती है, राइट? इमोशनल ट्रॉमा भी हो जाता है, फाइनेंशियली भी काफी. So what kind of emotional support or counseling support you would recommend to the couples who are going under the IVF treatment? First, what I do, मैं क्या करती हूँ उन जिनको IVF की जरूरत होती है, usually I tell them, counsel them कि सक्सेस रेट क्या है, फाइनेंशियली कॉस्ट क्या आता है, एंड आपके पर्टिकुलर केस में IVF क्यों जरूरी है, एंड देन एक इन्फॉर्म्ड चॉइस, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है कि उनको आगे गो हेड करना है या कोई और ऑप्शन के लिए जाना चाहते हैं. So once a woman conceive through IVF, so जो उसकी pregnancy care होती है, is it like same as we conceive through naturally or is it different case of IVF? See, obviously IVF pregnancy will be a high risk pregnancy,
एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कॉज क्या था, आईवीएफ हमने क्यों करा, क्या वजह थी, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें कितना हाई रिस्क है और हमें क्या एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है. सो अकॉर्डिंगली इफ अगर कोई अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है और यंग एज है तो इट विल बी मोर और लेस नॉट दैट हाई रिस्क. बट अगर कोई विमेन ओवरवेट है, पीसीओडी है, कोमॉर्बिडिटीज मतलब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें हैं, तो ऑब्वियसली दैट प्रेगनेंसी विल बी अ हाई रिस्क एंड उसको ज्यादा अटेंशन, ज्यादा फ्रीक्वेंट एंटीनेटल विजिट की जरूरत होगी, टेस्ट टाइम टू टाइम कराने की जरूरत होगी, बेबी के ग्रोथ को मॉनिटर करने की जरूरत होगी. सो दीज आर द थिंग विच जो कि केस टू केस वेरी करेगा. एंड यूजुअली आईवीएफ प्रेगनेंसी नीड्स more attention because obviously it is a precious pregnancy. So जो IVF जिसे जो बेबी होते हैं, are they more prone to some disease या health complications, या जैसे normal बेबी होते हैं उसी तरीके से कोई health complications नहीं होते? Not exactly. ऐसा नहीं है कि IVF बेबी में ये प्रॉब्लम ज्यादा ही होगी. It is because of the complication of pregnancy. जैसे मान लीजिए IVF प्रेगनेंसी है और वो उसमें प्री मेच्योर बर्थ हो गया. एक तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो लेबर कई बार प्री मेच्योर लेबर हो जाता है. प्री मेच्योर लेबर है, बेबी टाइम से पहले पैदा हुआ है, तो बेबी को कई बार नर्सरी केयर की जरूरत होती है. कितना प्री मेच्योर है, कितना नर्सरी केयर की जरूरत है. कभी अगर मदर में कोमॉर्बिडिटीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, तो बेबी में भी ग्रोथ इम्पैक्ट हैम्पर होने का, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन कहते हैं, अगर ऐसा है तो भी बच्चे को प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के बाद ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है. तो ये कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू प्रीमेच्योरिटी, रिलेटेड टू फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, इनसे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और केयर की जरूरत पड़ती है. बट अदरवाइज एज सच ये तो जो आपके केयर है या कंसर्न, ये तो जो नेचुरल जो डिलीवरी उनमें भी अगर ये सेम अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रही है तब भी सेम काइंड ऑफ मतलब केयर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़े मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क ज्यादा है. So, ये जो क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी है ये है क्या, इफ यू कुड एक्सप्लेन? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्रोमोसोम क्या चीज होती है. क्रोमोसोम हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है. हर एक सेल के में एक न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम होते हैं. क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं छोटे छोटे, विच इज एक्चुअली द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, है ना. तो वो जो जीन्स होते हैं, अगर वो जीन्स किसी तरीके से उनका कुछ पार्ट क्रोमोसोम में, कुछ एक पार्ट डिलीट हो जाए, मिसिंग हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, कुछ रीअरेंजमेंट हो जाए, सो दैट इज व्हाट इज क्रोमोसोमल एनोमली. और उसके बाद फिर लेटर ऑन फ्यूचर ऑफस्प्रिंग में बेबी, हाँ, ये सब ऑफस्प्रिंग में फर्टिलाइजेशन के बाद क्योंकि अनबैलेंस चीजें हो जाती हैं, तो दिस में लीड टू क्रोमोसोमल प्रॉब्लम. थैंक यू डॉक्टर फॉर दिस एपिसोड, जहां पर हमने मेंस्ट्रुअल हेल्थ से लेकर प्री कंसेप्शन और फर्टिलिटी प्लानिंग तक की बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर किए. मुझे लगता है कि ये डिस्कशन उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो अपनी जर्नी को बेटर समझना चाहते हैं. In our next episode, we will discuss about pregnancy care, labor, delivery and postpartum. You all please like this video, share and subscribe to our channel so that आप अगले एपिसोड को मिस ना कर पाएं.